Good evening, everyone. I hope you all are fine. So, welcome to this today's webinar session. So, as you know that we are conducting the webinars weekly basis. So, definitely it will help you to boost your busy knowledge, and you can also implement these points in your businesses or in your busy software. So, I would like to say thank you so much for your valuable time to joining this webinar. And today the topic is no more payment follow-ups with busy, it's just one scan away. So the topic is related to payment follow-up, because every businesses have some challenges related to this payment follow-ups. So the on-time customers will not make the payment. So that point of time you have to call the customer and you have to remember the things. Then they will make the payment. Second thing here is suppose they know about the payment, pending payment, but they want to make the payment very seamlessly using the QR scanner. So nowadays the QR scanning method is very using method, and everyone they know about a QR code scanning and Google Pay, Phone Pay scanning. So using that method, how we can process the payment or how we can make the payment. So within busy invoices. So that is our topic of the webinar session. So please stay tuned with us. So in between, if you had any questions, kindly use the chat box. So just you can put the messages. So I'll address your questions after end of this session. Okay. So thank you so much. We will start again. Okay. So basically, this session will be held in English and Hindi mixed mode of languages. Actually, the challenges of the businesses are in one scenario. Let us take in today's scenario, a UPI QR code on the bill is essential. I am using busy software. Can the standard और डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट प्रिंट विथ यूपीआई क्यूआर कोड? सो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप एग्जिस्टिंग बिजी यूज़र हो, so if you are using the busy software, so that software already have some invoice format design. Somebody they are using standard format, somebody they are using that is designed format, invoice customized format. सो इफ़ सपोज़ आपके जो इनवॉइस के अंदर क्यूआर कोड अगर नहीं आ रहा है, तो आप सोचते होगा कि मैं उसको ऐड कर सकते हैं क्या, उसको मैं क्यूआर कोड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लगा सकते हो। बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर उसका ऑप्शन अवेलेबल है। सो किस तरीके से हम लगा सकते हैं वो अभी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इफ़ यू आर अ यूजर ऑफ busy software, when if you want to add the payment QR code on your existing invoice format, so how to configure it and how to add it? So let me show you. बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले ले लेते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आप यूज़ करते हो तो अभी वेरी रिसेंट रिलीज जो हमने हमारे आया था 13.7, इसके अंदर एक एनहांसमेंट भी कर चुका है। सो ये एनहांसमेंट ये है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो, फीचर्स एंड ऑप्शंस पर जाते हो, इसमें आपको जनरल टैब करके मिलता है। सो जनरल टैब पर जाके आप सिंपली F3 से सर्च कर सकते हैं क्यूआर करके। तो क्यूआर करके सर्च करने से जो आपको यहाँ पर एनेबल पेमेंट क्यूआर कोड करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, पहले नहीं था, 13.7 के अंदर आपको मिलेगा। तो ये अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर का बटन दिया हुआ है। सो कॉन्फ़िगर पर जाके आपका जो यूपीआई का नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ABC कंपनी कुछ भी हो, तो आपका कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना है और आपका जो यूपीआई आईडी है वो लिखना है। यूपीआई आईडी जो आपको पता है क्या होता है, वो यूपीआई पेमेंट गेटवे का आईडी होता है। आप सबको जैसे फ़ोन पे, गूगल पे के अंदर भी होता है, और जो स्कैनर होता है, स्कैनर के नीचे भी लिख के होता है। तो वो यूपीआई आईडी यहाँ पर हम स्पेसिफाई करना है, उसके बाद इसको सेव करना है। ये अभी का सेटिंग्स है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, आपने जो जीएसटी एंड वैट सेटिंग्स के अंदर जाके वहाँ पर ई इनवॉइस फीचर अगर आप ऑन करते हो, यहाँ पर जो ई इनवॉइस का फीचर ऑन करते हो, तभी हमारे पास जो B2C क्यूआर कोड रिक्वायर्ड करके एक ऑप्शन अवेलेबल होता था। इसको ऑन करेंगे तभी आपको कॉन्फ़िगर पर जाके या जो आपका यूपीआई का जो आपका ट्रेडिंग नाम लिखना पड़ता था, यूपीआई आईडी लिखना पड़ता था, बैंक अकाउंट नंबर लिखना पड़ता था, फिर आईएफएससी कोड लिखना पड़ता था। तो ये करना पड़ता था पहले स्टैंडर्ड के अंदर। अगर आप क्यूआर कोड B2C क्यूआर कोड अगर प्रिंट करना हो तो B2C क्यूआर कोड का मतलब ये होता है, जैसे हम अगर देखिए इनवॉइस में कभी कभी ई इनवॉइस भी बनाते हैं, क्यूआर को पेमेंट क्यूआर कोड भी हमको चाहिए। अगर स्टैंडर्ड की ही बात करते हैं, पहले क्या होता था,
अगर आपने जो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ई इनवॉइसिंग जनरेट करते थे, तब वो क्यूआर कोड ई इनवॉइस के लिए यूज होता था, वो इनवॉइस के लिए क्यूआर कोड बन जाती थी। लेकिन अगर ई इनवॉइसिंग आप नहीं बनाते हो, इस केस में बी टू सी क्लाइंट को अगर बिल रेज करते हो, उस पॉइंट ऑफ केस में वो क्यूआर कोड पेमेंट का है ना, पेमेंट क्यूआर कोड करके कन्वर्ट होता था, ये इंटरनली कन्वर्ट होता था। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। अगर आपको पेमेंट क्यूआर कोड ही चाहिए, आपको ऑलवेज पेमेंट क्यूआर कोड ही चाहिए, तो इसको आप बी टू सी क्यूआर कोड को यस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ आपको नो करना पड़ेगा। सिर्फ जनरल सेटिंग्स में मैंने जो पहले सेटिंग्स दिखाया, वहाँ पर आपने जो आपका यूपीआई आईडी को स्पेसिफाई करना है। तब ये किस तरीके से आपको प्रिंट पे प्रिंट करता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड के अंदर। अब मैं एडवांस का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टैंडर्ड का बात कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरी इनवॉइस एंट्री है। यहाँ पर मैंने एक बिल को मॉडिफाई मोड में ओपन किया हूँ। फिर मैं सेल्स इनवॉइस पर जाऊँगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड करके सर्च करके मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर जो प्रीव्यू मैं कर रहा हूँ, इसका नीचे जो क्यूआर कोड आ रहा है, पेमेंट क्यूआर कोड करके आ रहा है। ये पेमेंट क्यूआर कोड पहले नहीं आता था, बी टू सी क्यूआर कोड करके आता था, लेकिन अभी पेमेंट क्यूआर कोड इसलिए आ रहा है, जो हमने जनरल सेटिंग्स के अंदर पेमेंट क्यूआर कोड को ऑन करके रखा है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड के अंदर अपने आप प्रिंट हो जाती है। इन केस आपको अगर ई इनवॉइसिंग क्यूआर कोड रिक्वायर्ड है, तभी आप जीएसटी वैट सेटिंग्स जो जो होता है उस पर जाके ई इनवॉइस के लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर क्यूआर कोड को ऑन कर सकता है, यहाँ पर इसको ऑन कर सकता है, तब इनवॉइस क्यूआर कोड प्रिंट होता है। अगर इनवॉइसिंग आप नहीं बनाते हो, फिर वो पेमेंट क्यूआर कोड होके प्रिंट होता है। ये इस तरीके से इसका सेटिंग्स अभी हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजी यूज़र हो जो एडवांस का कोई फॉर्मेट यूज़ कर रहा होगा, जैसे 3 इंच का हो, 4 इंच का हो, A5 का हो, A4 का हो, कोई भी हो, तो इस केस में आपको जो बिजी के अंदर एक नए फील्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कॉन्फ़िगरेशन पर जाके हम इनवॉइस डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग पे एडवांस डिज़ाइनिंग पर जाएंगे। वहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए जो स्लिप 3 इंच जीएसटी करके एक फॉर्मेट है मेरे पास, उस पर जाके मैं फूटर के अंदर आपको दिखाऊंगा। फूटर पर जाऊंगा, वहाँ पर मैं सबसे नीचे लास्ट पे क्या करूँगा, ये लाइन को हटा के मैं यहाँ पर ऑल्ट F4 करूँगा। अदरवाइज आपको नीचे फील्ड्स करके अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो पेमेंट क्यूआर कोड। पहले ये वाली फील्ड आपको नहीं मिलेगा। अभी 13.7 आपने इंस्टॉल अगर किया हुआ है, अपग्रेड किया हुआ है सॉफ्टवेयर, तो अब तब आपको पेमेंट क्यूआर कोड मिलेगा। इस वाली फील्ड को लगा देना है। फिर आप यहाँ पर जो क्यूआर कोड का जो बेसिकली हमारे जो कैरेक्टर हम डिफाइन करते हैं इनवॉइस डिज़ाइन के अंदर, वैसे इसको कैरेक्टर डिफाइन करना है, फिर इसको सेव करना है। ये रहा पेमेंट क्यूआर कोड का फील्ड। अब ये पेमेंट क्यूआर कोड का फील्ड हमने लगा दिया, लेकिन हमने उसका फुटर का कितना नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे पास अभी 3 इंच का फॉर्मेट में फुटर के अंदर कितनी लाइन है, अब हम एक बार देख लेते हैं। नीचे आपको पता चलेगा लाइन नंबर 9 है। पेज सेटिंग्स में कितना नंबर ऑफ लाइन है, यहाँ पर 16 है, इसको भी 9 कर लेता हूँ। अब जाके हम इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। 3 इंच फॉर्मेट के अंदर जो हमने डिफ़ॉल्ट जो पेमेंट क्यूआर कोड का फील्ड लगा दिया, फिर हमारी जो एडवांस डिज़ाइनिंग के जो बात कर रहे हैं उसमें आपका प्रिंट में क्यूआर कोड लग जाती है। अब देख सकते हैं इसमें जो क्यूआर कोड आ रहा है, कैन एंड पे थ्रू एनी यूपीआई ऐप। तो इस तरीके से जो हमारी क्यूआर कोड एडवांस डिज़ाइनिंग के अंदर भी लग जाती है। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजी यूज़र कोई सॉफ्टवेयर बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फॉर्मेट यूज़ करते हो, तो फिर आपको इस तरीके से यूपीआई क्यूआर कोड को लगा के स्कैन करके जो मतलब पेमेंट स्कैन कर सकते हैं। If in case earlier I customized my invoice format but did not add the UPI QR code, how can I add it now so customer can scan and pay easily? ये मैंने अभी आपको जो बताया, कस्टमाइज्ड इनवॉइस के सिनेरियो में अगर आप एग्जिस्टिंग फॉर्मेट कुछ यूज़ करते हो, तो उसी के अंदर अगर आप जो फील्ड लगाना हो तो सिंपल एक फील्ड लगा दीजिए, पेमेंट क्यूआर कोड, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जो पेमेंट क्यूआर कोड करके फील्ड अवेलेबल है बिजी में, इसको लगा दीजिए, तो आपको प्रिंट आउट के अंदर क्यूआर कोड आ जाता है। अगर ये आप स्कैन करते हो, एग्जैक्ट आपका इनवॉइस का वैल्यू कितना है, उतना ही आपका पेमेंट वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द customization. That is not customization, it's a simple settings. So I run a restaurant where most customers pay via UPI.
they currently need to walk to the counter for payment. How can I make this process easier? बेसिकली जो ये एक्सपीरियंस सबको हुआ होगा, जैसे हम अगर एक होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पर काउंटर पे जो वेटर एक बिल लेके आता है, फिर वो बिल लेके हम वहाँ पर काउंटर पर जाके पे करना पड़ता है। अगर ये पेमेंट आज के दिन स्मार्टली करना है तो हम मोबाइल से एज अ सिट वो टेबल के अंदर बैठ के ही हम पेमेंट करा सकते हैं। इफ़ यू हैव दिस फीचर, मोबाइल ले लिया आपने, स्कैन करा और पेमेंट करा दिया। ये फीचर अगर आपको एज अ रेस्टोरेंट ओनर है और रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हो, आपको आपको ये फीचर काफ़ी यूज़ होता है। बिल के अंदर जो बिल प्रिंट आउट आप कर जैसे क्यूआर कोड को प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रिंट आउट आप 3 इंच का लेते हो तो 3 इंच के अंदर, जैसे मैं आपको एक फ़ोटो इमेज दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से जो आपका 3 इंच फॉर्मेट के अंदर नीचे प्रिंट करा सकते हैं। नीचे आपको जैसे इस तरीके से क्यूआर कोड को प्रिंट करा सकते हैं, तो ये स्कैन करके बिजी से पेमेंट बना सकते हो। अभी हम दूसरा सवाल को भी देखेंगे। जैसे आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर, आफ्टर बुकिंग आई वॉन्ट टू कलेक्ट एडवांस पेमेंट्स, कैन आई प्रिंट एंड शेयर एन ऑर्डर बुकिंग रिसिप्ट विथ अ यूपीआई क्यूआर कोड? तो ये भी बिजी के अंदर सॉल्यूशन है। इफ़ यू वांट्स टू प्रिंट द यूपीआई क्यूआर कोड ऑन योर सेल्स ऑर्डर कॉपी और सेल्स ऑर्डर बुकिंग रिसिप्ट, यू कैन डू दैट। सो ये आपको कैसे कर सकते हैं एक बार हम देखेंगे। बेसिकली मेरे पास अभी सेल्स ऑर्डर फीचर बिजी के अंदर मैं ऑन करके रखी हूँ इन्वेंट्री के अंदर से। फिर मैं यहाँ पर एक बिल सेल ऑर्डर का एंट्री किया हूँ, जो मैं मॉडिफाई मोड पे दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा सेल ऑर्डर एंट्री है। इस सेल्स ऑर्डर एंट्री को मैं अभी अगर प्रिंट करना है, एग्जाम्पल मैं प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट के अंदर मेरा क्यूआर कोड प्रिंट हो जाता है। इस तरीके से क्यूआर कोड प्रिंट हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड प्रिंट हो रही है। इसमें भी आपको दो तरीके से, जैसे पहले जो क्यूआर कोड को प्रिंट करने के लिए हमने कुछ डोमेन का नाम वो देना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। अभी वो मेथड अभी भी है। वो जैसे हमारे एडवांस फॉर्मेट के अंदर हमने जैसे एक क्यूआर करके कुछ नाम दे के हमने एक डोमेन का नाम देते थे, वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करते थे। ये मेथड से भी आप प्रिंट करा सकते हो क्यूआर कोड को। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बता दिया, सेल ऑर्डर हो, सेल्स इनवॉइस हो, उसी के अंदर जो आपका पेमेंट मोड का जो पेमेंट क्यूआर कोड का जो फील्ड आपको अवेलेबल है, उसको यूज करके भी क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हो। जो यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल सेल ऑर्डर आपको प्रीव्यू दिखाया था, ये मैंने फूटर में क्यूआर कोड लगाया था। फूटर के अंदर मैंने क्यूआर कोड लगाया था। ये मैं पहले का जो ऑप्शन थे, जैसे क्यूआर कोड, यहाँ पर F4 करके जो क्यूआर कोड को हम सेलेक्ट करते थे, क्यूआर कोड फील्ड प्रिंट स्टाइल, और उसका जो फॉर्मेट का नाम हमने लिखते थे यहाँ पर क्यूआर करके कुछ भी है, वो हम वहाँ पर वो फॉर्मेट हमने पहले बना के रखना पड़ता था और उसको यहाँ पर डिफाइन करना था। लेकिन अब ये अगर आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल गया है, फील्ड अवेलेबल में जाके पेमेंट क्यूआर कोड करके आप सर्च करोगे ना, तो सेल्स ऑर्डर के अंदर भी क्यूआर कोड लग जाती है। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बिजी में हो जाएगा। सो नेक्स्ट, समटाइम्स आई सेंड द बिल टू कस्टमर्स ऑन व्हाट्सएप व्हेन दे कैन नॉट विजिट द स्टोर, कैन आई सेंड द बिल विथ अ यूपीआई क्यूआर कोड? अगर आपका क्यूआर कोड, पेमेंट का क्यूआर कोड जैसे बिल पे आता है, तो ऑब्वियसली आप बिल को शेयर करते हो तो उसमें भी आता है। व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, ईमेल पे शेयर करते हो, और टेलीग्राम में शेयर करते हो, मतलब आपका मर्जी है तो आप करते हो, तो वहाँ पे भी आपको क्यूआर कोड जो ज़रूर आपको आ जाता है। बेसिकली मतलब आपको इनवॉइस को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके अलग अलग मीडिया पर शेयर कर सकते हो। नहीं तो बिजी से डायरेक्टली शेयर करना हो तो डायरेक्टली इनवॉइस कॉपीज चला जाता है थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप और बिजी बीएनएस के थ्रू, तो उसमें भी आपको क्यूआर कोड लग के चला जाता है। तो ये कैसे होता है एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जैसे मैंने एक बिल बनाया, सेल इनवॉइस, ये जो रिटेल पीओएस कंपनी है, इसमें मैंने ऐसा एक बिल बना दिया। फिर मैं इसको सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आता है। प्रिंट के बाद एसएमएस के लिए हमारे पास एक पॉपअप आती है, उसको यस करते हैं। यस करने पर आपको कौन सा फॉर्मेट और डिफ़ॉल्ट में सेट करके रख सकते हैं। फिलहाल मैंने सेट नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैंने मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूँ। एसएमएस बटन पर क्लिक करते हुए नीचे व्हाट्सअप का नंबर मांगेगा। अगर व्हाट्सअप का नंबर कस्टमर का लेजर पर ऑलरेडी सेव्ड है तो फिर आपसे नहीं मांगेगा। तो फिलहाल मैं मोबाइल नंबर मैन्युअली डाल के मैं इसको सेंड करूँगा।
मैं सेंड करते वक्त ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सअप ओपन होता है, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखी हूँ बिजी में। इस समय मेरा व्हाट्सअप के अंदर मेरा मैसेज चला जाता है। ये जो मैसेज मैंने टेम्पलेट को, जैसे मैं टेस्ट पर्पस के लिए कुछ टेम्पलेट को सेट किया था यहाँ पे, एक्चुअली डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ऐसा नहीं होगा। ये टेम्पलेट मैंने जो टेस्टिंग पर्पस के लिए सेट किया था, आप देख सकते हो इस मैसेज के बाद यहाँ पर एक लिंक चला जाता है कस्टमर को। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इनवॉइस का कॉपी व्यू करके डाउनलोड कर सकता है कस्टमर, और उस इनवॉइस के अंदर आपका जो क्यूआर कोड आपने लगाया है वो चला जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस के अंदर क्यूआर कोड आ रहा है। तो इस तरीके से बिजी के अंदर से हमने क्यूआर कोड को कॉन्फ़िगर करके व्हाट्सएप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये फीचर काफ़ी नेसेसरी है आज के दिन, क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर पेमेंट करता है तो कभी कभी पेमेंट का डिटेल मिसमैच हो जाता है। पेमेंट का डिटेल हम व्हाट्सएप में भेजते हैं, ईमेल में भेजते हैं, गलती गलती से कुछ एक नंबर गलत डाल दिया तो पेमेंट किसी और को चला जाता है। वो कहेगा कि पेमेंट मैंने किया हूँ लेकिन हमको पेमेंट नहीं मिला है, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होता है। तो इस वजह से अगर आप क्यूआर कोड से थ्रू करते हो पेमेंट, अन्य कोई पर्सन को और कंपनी को पेमेंट्स नहीं जाता है, सिर्फ आपको ही पेमेंट आएगा, और ये पेमेंट एक्यूरेट रहेगा और आपको डेटा रिकन्सिलेशन, सब कुछ बैंक रिकन्सिलेशन करने से आपको इजी हो जाता है। ठीक है। सो ये था एक्चुअली व्हाट्सअप शेयरिंग के अंदर हम कैसे यूपीआई क्यूआर कोड को बेच सकते हैं, ये था। दूसरा सिनेरियो और दूसरा चैलेंज ये भी हो सकती है कि अगर आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर and retailer often ask for their ledger before making the payment. Can I share the ledger with a UPI QR code so they can pay the pending balance easily? So अगर आप किसी कस्टमर को लेजर कॉपी, लेजर स्टेटमेंट भेजना है तो कस्टमर वो लेजर स्टेटमेंट को देख के क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अगर ये पेमेंट का अमाउंट वहाँ पर कितना है, फॉर एग्जांपल 7,000 है, वो बगल पे अगर क्यूआर कोड होती है वहाँ पे स्कैन करेंगे तो 7,000 का पेमेंट आपको आ जाता है, तो कस्टमर भी खुश हो जाता है, क्योंकि उनको पूरा नेट बैंकिंग लॉगिन करके आपका अकाउंट डिटेल्स डाल के आईएफएससी कोड डाल के पेमेंट करना ज़रूरी नहीं पड़ा। वो सीधा सीधा वो स्टेटमेंट देकर वहाँ से बगल पे क्यूआर कोड थे उसको स्कैन करके पेमेंट करा दिया। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो बीजी में तो बिल्कुल इसका सुविधा अभी 13.7 रिलीज़ के अंदर हमने लॉन्च किया हुआ है। इसको आप मत ज़रूर ट्राई कीजिए प्लीज़। सो इस सेटिंग्स को करने के लिए आप पहले जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे दिखाया था, जैसे जनरल सेटिंग्स पे जाएंगे। जनरल सेटिंग्स के अंदर आप इस फीचर को ऑन ज़रूर करना है, जो क्यूआर कोड का फीचर को ऑन करना है, करके जो आपका यूपीआई आईडी कंपनी का नाम ज़रूर स्पेसिफाई करना है। ये करने के बाद आप अगर कोई डिस्प्ले से हो और प्रिंट ईमेल एसएमएस से हो, यहाँ से हो और यहाँ से हो, तो अगर आप पेमेंट क्यूआर कोड जैसे लेजर स्टेटमेंट प्रिंट करते हो वहाँ पे पेमेंट क्यूआर कोड आ जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल एक अकाउंट का लेजर स्टेटमेंट ओपन करता हूँ। एग्जांपल, कोई भी पार्टी है, कोई पर्सन है, तो दिस इज़ माई पार्टी, उनका लेजर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल एक लेजर मैंने ओपन करा। इस लेजर स्टेटमेंट में ऑल्ट पी से ओपन करता हूँ, ऑल्ट पी करके जो प्रिंट करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रिंट पेमेंट क्यूआर कोड। इस ऑप्शन को यस करके हम अगर प्रीव्यू करते हैं, देखिए जो क्रेडिट बैलेंस और ग्रैंड टोटल के बगल पे आपको स्कैन टू पे करके एक क्यूआर कोड मिल जाता है। ये क्यूआर कोड स्कैन करके जो हम ये अमाउंट को मतलब उस हमारी जो वेंडर को पे कर सकता है। तो ये इस तरीके से सेटिंग्स अभी दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने बताया आपको जनरल सेटिंग्स के अंदर वो सेटिंग्स को ऑन करना है। साथ साथ आपको यहाँ पर एक और सेटिंग्स, छोटा सा सेटिंग्स होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर सेल्स वाउचर सीरीज, उतना ही है और कोई दूसरा सेटिंग्स नहीं, वही करना है। ठीक है। सो वो एक सेटिंग्स होता है, वो करने से आपको यहाँ पर जो लेजर प्रीव्यू करते हैं वहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिल जाता है और कुछ नहीं है। ये भी एक एडवांटेज है ये फीचर का कि अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट करता है तो किसी और को पेमेंट नहीं करेगा, खुद आपको ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन का कोई डिटेल्स मिसमैच होता है, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड किसी और को जाने का चांसेस काफ़ी होता है। नेक्स्ट चैलेंजेस ये भी हो सकता है, आई हैव बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस, मोस्टली माई सेल इज ऑन क्रेडिट, कैन आई सेट ऑटोमेटिक पेमेंट फॉर कस्टमर्स? ऑफ कोर्स, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी कस्टमर को मैंने उधार दिया है, क्रेडिट में सेल कर दिया है,
मोस्टली ये बिल्डिंग मटेरियल इस तरीके से बिजनेस में काफ़ी ये होता है। वो हर बार उसको कॉल करके पूछना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को हो और कस्टमर को हो, कि पेमेंट पेंडिंग है, जल्दी पेमेंट करो क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, ऐसा कुछ बताना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसा बिजी सॉफ्टवेयर है तो उसी के अंदर आपको एक पेमेंट रिमाइंडर सेंड करने का भी ऑप्शन होता है। ये ज़रूर आप ट्राई करिए। ये करने के लिए सबसे पहले आपके पास बिजी एजेंट को एप्लीकेशन, बिजी एजेंट जो एप्लीकेशन है, पैरेलल एप्लीकेशन है बिजी का, इसको डाउनलोड करके आप बिजी के साथ साथ ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर बिजी एजेंट नहीं होती है तो पेमेंट रिमाइंडर आपको ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, मैनुअल बेचना पड़ता है। बिजी एजेंट अगर आप यूज़ करती मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, फिर जनरल सेटिंग्स के अंदर आपका जो डेटाबेस के अकॉर्डिंग, डेटाबेस मतलब एसक्यूएल और एक्सेस डेटाबेस की विच डेटाबेस आपने यूज़ करते हो, यू कैन डिफाइन द डेटा डायरेक्टरी पाथ ओवर हियर। तो आई होप डेटा डायरेक्टरी पाथ आपको पता है कहाँ पर होता है। बिजी के अंदर जो डेटा डायरेक्टरी पाथ होता है, यहाँ पर ये मेरा डेटा डायरेक्टरी का पाथ है। इस डेटा डायरेक्टरी का पाथ को मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। साथ साथ ये जो ईमेल का आईडी बताना पड़ेगा, किस मेल आईडी से जो कस्टमर्स को ईमेल जाना है, पेमेंट रिमाइंडर जाना है, जो सोर्स मेल आईडी, जो सेंडिंग मेल आईडी बताना पड़ता है। ये हमारा मेल आईडी होता है, सेंडर का मेल आईडी होता है। फिर जीमेल का जो एसएमटीपी सर्वर का नाम है smtp.gmail.com, ये बिल्कुल जीमेल का यही होगा, सबको यही होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन कोई मतलब ये आपको पता नहीं तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो, व्हाट इज़ द एसएमटीपी सर्वर नेम ऑफ जीमेल अकाउंट करके, वो आपको मिल जाता है। फिर ये आपका जो पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट में 465 ही रखिए, चेंज करना ज़रूरी नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ये आपका यूज़र नेम है। फिर है पासवर्ड। पासवर्ड आपको जो देखिए, अभी जो गूगल के तरफ से पासवर्ड है ना, थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। अगर आप एक बार गूगल का जो जीमेल अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ पे 9 डॉट्स होता है ना, 9 डॉट्स के अंदर अकाउंट्स करके होता है, इस पे जाके जो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। पहले आपका जो होता था, जो डायरेक्ट पासवर्ड लगा के सेंड कर सकता था, लेकिन अभी गूगल ने कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दिया है, इस वजह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके सर्च के अंदर ऐप पासवर्ड करके सर्च करने से, ऐप पासवर्ड करके सर्च करने से जो आपको यूज़र आई सो पासवर्ड मांगेगा, अकाउंट पासवर्ड, पासवर्ड हम डाल के लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो पासवर्ड क्रिएशन का विंडो ओपन होता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पासवर्ड अभी जो क्रिएट किया है। अगर इनकेस आपको नए पासवर्ड क्रिएट करना हो तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम, कुछ भी एप्लीकेशन का नाम आप लिख सकते हो, फिर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट होता है, उस पासवर्ड को कॉपी करके आप बिजी एजेंट के अंदर यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये हमारी जो पेमेंट रिमाइंडर कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट स्टेप है। ये करने के बाद दूसरा स्टेप होता है, यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर का एक लास्ट वाली बटन होता है। लास्ट वाली बटन पर आके हमने को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी के अंदर से पेमेंट रिमाइंडर जानी है, किसको जाना है, एक अकाउंट को जाना है, सभी अकाउंट, ऑल अकाउंट को जाना है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ अकाउंट को जाना है, सिलेक्टेड ग्रुप को जाना है, आपका मर्जी है, वो आपका हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल अभी डेबिटर करके ग्रुप को ले लिया हूँ। डेबिटर मतलब कस्टमर्स है, उस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को ही मैं रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ और किस कंपनी से भेजना चाहता हूँ, ये पूरी यहाँ पर सेटिंग्स होता है। और ये डेली भेजना है क्या, वीकली भेजना है क्या, 15 दिन में एक बार भेजना है क्या, हर मंथ भेजना है क्या, ये आप डिसाइड कर सकते हो। फिर किस समय पे भेजना है, वो समय भी, टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि 10 बजे भेजना है, 5 बजे भेजना है, 6 बजे भेजना है, तो ये टाइमिंग सेट करके रख सकता है। साथ साथ ये पेमेंट रिमाइंडर किसके अगेंस्ट भेजना है, बैलेंस पेमेंट के लिए भेजना है, पेंडिंग बिल के लिए भेजना है, ड्यू बिल के लिए भेजना है, ये भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये अगर सेट करके एक बार हमने रख लिया तो फिर बिजी सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, डे के अंदर कस्टमर्स लोगों को यहाँ से रिमाइंडर भेज देता है। ये इसका सेटिंग होता है। और अगर पेमेंट रिमाइंडर मैन्युअली सेंड करना हो तो यहाँ पे बिजी एजेंट के अंदर आपको एक बटन और दिया गया है, सेंड पेमेंट रिमाइंडर। जो सेंड पेमेंट रिमाइंडर पर क्लिक करते हुए आपको मैन्युअली भी पेमेंट रिमाइंडर भेजने का ऑप्शन दिया गया है। अभी आपको ये पता चला होगा किस तरीके से हम लोग बिजी एजेंट के थ्रू पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं और मैन्युअली भी हम कैसे सेंड कर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन इसमें दिया गया है। ये जरूर याद रखिए, कभी भी बिजी एजेंट आप यूज़ करते हो तो इसको एक बार स्टार्टअप करके डाल के रखना पड़ता है। यहाँ पर बिजी एजेंट एप्लीकेशन को स्टार्टअप के अंदर नहीं डाला है, फिर रिमाइंडर नहीं जाएगा।
और गूगल ड्राइव बैकअप भी नहीं होता है। ये क्या होता है, अगर आपका सॉफ्टवेयर बंद है, कंप्यूटर ऑन है, तो भी पेमेंट रिमाइंडर चला जाता है। ये याद रखना है, कभी भी हम बिजी एजेंट को यूज़ करते हैं तो उसको स्टार्टअप में कभी भी ऐड करके रखना पड़ता है। इस तरीके से पेमेंट रिमाइंडर को कॉन्फ़िगर करा, फिर उस समय के अनुसार वो पेमेंट रिमाइंडर कस्टमर्स को चला जाता है। हमारे तरफ से कोई फॉलो अप, मैनुअल फॉलो अप का ज़रूरी नहीं रहेगा। कस्टमर को तुरंत मेल जाता है, वो जाके पेमेंट करेगा। और पेमेंट रिमाइंडर का मैसेज आपको किस तरीके से रिसीव होता है, उसका एक सैम्पल टेम्पलेट कैसे होता है, एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर ऐसा करके मेरे मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट रिमाइंडर आ चुकी है। उस पेमेंट रिमाइंडर का कंटेंट इस तरीके से होगा। देखिए, हाई, एज ऑफ इस डेट देयर रिमेन्स एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹29,500 payable to us for due bills. The detailed information regarding these due bills has been provided for your review. Kindly arrange for the settlement for this amount at your earliest convenience. Thank you for your prompt attention to this matter. Should you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact us. Best regards, so and so company. So इस तरीके से पेमेंट रिमाइंडर along with some अटैचमेंट भी चला जाता है। अटैचमेंट मतलब उसका पर्टिकुलर पार्टी का बिल रिसीवेबल स्टेटमेंट, कौन सा बिल उनको सेल किया है, कब सेल किया है, उसका वैल्यू कितना है, तो ये जान के उन्होंने पेमेंट कर सकता है। तो ये सारे हमारी जो सेटिंग्स होता है बिजी के अंदर, पेमेंट रिमाइंडर का सेटिंग्स है, ये आपको बिल्कुल पेमेंट फॉलो अप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसको यूज़ करके आपका काम और आसान से पूरी कर सकता है। तो नेक्स्ट चैलेंज ये भी आपको होगा, आई थिंक, कैन आई शेयर द इनवॉइसेस विथ अ क्यूआर कोड सो दैट कस्टमर्स कैन डायरेक्टली मेक द यूपीआई पेमेंट फॉर द एग्जैक्ट बिल अमाउंट विदाउट एनी मिस्टेक्स और इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने पेमेंट क्यूआर कोड का एक नए फील्ड के बारे में मैंने बताया 13.7 के अंदर, उस पे आपको जैसे आपको स्कैन करते हो ना, वो पेमेंट आपको ऑटोमेटिक नहीं फेच हो रहा था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, पुरानी वाली जो मेथड हमारा तो बिजी में थे, पुरानी मेथड को आप यूज़ कर सकता है। पुराने मेथड मतलब कौन सा मेथड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले जो कंपनी ओपन करके आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर तो हमारा डोमेन का नाम वो सब मेंशन करना पड़ता था ना पहले, जो एक फॉर्मेट बना के उस फॉर्मेट का नाम को क्यूआर कोड के अंदर डिफाइन कर, वो मेथड को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अभी देखिए, इनवॉइस फॉर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाऊंगा, यूपीआई करके बनाऊंगा। यूपीआई करके फॉर्मेट बना के मैं यहाँ पर पेज सेटिंग्स पर जाऊँगा। इसका हेडर का नंबर ऑफ लाइन्स 1 रखूँगा, बॉडी 0, फुटर 0। फिर हेडर पर जाके यहाँ पर मैं जो यूपीआई करके जो हमारी डोमेन नेम होता है, यूपीआई को डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बैकस्लैश पे इज इक्वल पे क्वेश्चन मार्क, ये एक्चुअली डोमेन का नाम होता है। मैं पार्टी का अकाउंट का नाम इज इक्वल टू पार्टी का अकाउंट का नाम डालना है। नाम का मतलब जैसे उनका यूपीआई आईडी एग्जाम्पल, मेरा यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, यूपीआई आईडी डाल देते हैं। एम्परसेंट का साइन डालना है, एम्परसेंट। तो हर जो वैल्यू के बाद एक एम्परसेंट का साइन जो जरूर डालना है। उसके बाद पार्टी का जो नाम, पार्टी नेम इज इक्वल टू एग्जाम्पल ABC ट्रेडर्स, ऐसा कुछ डाल देते हैं। ABC ट्रेडर्स हो गया उनका नाम। फिर उसके बाद अगेन हमने जो एम्परसेंट का साइन जरूर डालना पड़ता है। उसके बाद जो MC करके डालेंगे, MC का मतलब जैसे होता है मर्चेंट कोड करके, इसके बाद इज इक्वल टू मर्चेंट कोड के जो ये होता है 0000, ये एक्चुअली NCPL ने जो डिफाइन दिया हुआ है MC कोड, मर्चेंट कोड, तो ये 0000 ही डालना पड़ेगा वहाँ पर, और कुछ नहीं डालना है। इज इक्वल टू मोड ये भी NPCL ने ही दिया है। ये मोड एक्चुअली होता है 02, ये ऑलवेज 02 ही होता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, P2P, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। अभी हम पेमेंट करते हैं ना, ये पर्सन टू मर्चेंट है, तो ये 02 कोड नंबर आता है, ये डिफ़ॉल्ट यही होगा। फिर एम्परसेंट का साइन यहाँ पर हमने डाल दिया। मोड के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर, कुछ रेफरेंस नंबर, जो हमारी इनवॉइस नंबर, कुछ रेफरेंस नंबर होता है ना, वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको इज इक्वल टू का साइन डालना ही है। हर जो फील्ड के बाद में जो आपने इज इक्वल टू का सिंबल डालना है। जो आपका इनवॉइस नंबर IN, ये जस्ट टेक्स्ट फील्ड है। इनवॉइस पर नंबर करके डाल दिया मैंने, इनवॉइस नंबर, यहाँ पर एक कोलन लगा लेते हैं। फिर हमारा बिजी का जो डायनामिक वैल्यू वहाँ पर
पेमेंट के बाद जो हमारे को रेफरेंस आना चाहिए, ये पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट हुआ है, ये जानने के लिए वहाँ पे रेफरेंस नंबर अगर होता है तो ये बिल्कुल हमको आसान होता है फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए मैंने एक फील्ड यहाँ पर बीजी का डायनेमिक फील्ड को ऐड कर रहा हूँ, वी सी एच नंबर ऐसा करके। तो वी सी एच नंबर आपको ऑलवेज यहाँ पर मिलेगा, वी सी एच नंबर करके सर्च करने पर मिलेगा। यहाँ से वी सी एच नंबर को हमने डाल दिया, हो गया वी सी एच नंबर। इसके बाद हम अगेन एम% का साइन डाल देते हैं। वैल्यू के बाद एम% का साइन कंपलसरी डालना ही है। उसके बाद हम यहाँ पर पर्पस डाल देते हैं। पर्पस इज ऑल्सो सम वैल्यू है, वो पर्पस इज इक्वल टू ऑलवेज 0 0 ही होगा। ये भी NCPL से डिसाइड किया हुआ है, पर्पस UROSC। इसके बाद अगेन एम% का साइन डाल देते हैं। परसेंट का साइन के बाद तो यहाँ पर नेक्स्ट ये एम करके आता है, ए एम का मतलब अमाउंट, अमाउंट करके आता है। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल देना है। इज इक्वल टू का साइन डाल के यहाँ पर अमाउंट जो एक फील्ड बिजी का डायनेमिक फील्ड को लगाना पड़ेगा, ऑल्ट F4 करके अमाउंट ग्रैंड टोटल इस वाली फील्ड को डालना है, अमाउंट ग्रैंड टोटल। देखिए अमाउंट ग्रैंड टोटल डालने से वहाँ पे जो 16,000 वैल्यू है तो 16,000 करके आता है, लेकिन वो बगल पे 0.00 डेसिमल वैल्यू होता है। वो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे 16.2 बताया, डेसिमल भी आ जाएगा, लेकिन हमको नो करेंसी फॉर्मेट में चाहिए। इसके लिए एक मैनिपुलेशन फील्ड हम इंसर्ट करना पड़ता है, #NCF, नो करेंसी फॉर्मेट। नो करेंसी फॉर्मेट जो ये फील्ड को डालना पड़ता है, क्योंकि वो हमने जो 16,200 एक वैल्यू बिजी का फील्ड से वैल्यू उठा के लेके आ रहा है, वो नो करेंसी मतलब नो करेंसी फॉर्मेट में होना चाहिए। NCF करके फील्ड को लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ये हम जरूर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन एम% का साइन डाल देना है। एम% का साइन को डाल के यहाँ पर हम नेक्स्ट फील्ड को लगाना है, जैसे करेंसी यूनिट। कैपिटल में भी लगा सकते हो ये सब फील्ड वैल्यू, अदरवाइज स्मॉल में भी लगा सकते हो। करेंसी यूनिट को लगाना है, फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है। करेंसी जो हमारे इंडिया में होता है INR, इंडियन नेशनल रुपीस। अगेन एम% का साइन डाल के यहाँ पर हम बतानी है अमाउंट, सो मिनिमम अमाउंट MAM, तो हम कहते हैं MAM मिनिमम अमाउंट। अगर 1 रुपये से ज़्यादा है हमारे लिए कोड प्रिंट होना चाहिए। इस तरीके से कमांड होता है। ये हमने एक जैसे UPI के लिए हमने एक कॉन्फ़िगरेशन का एक डोमेन हमने क्रिएट कर दिया, वो UPI का कोड क्रिएट कर दिया, फिर इसको सेव कर दिया। अब ये हमने UPI करके नाम से एक फॉर्मेट बनाया है ना, ये वाली फॉर्मेट हम एक फॉर्मेट टेस्ट करके एक फॉर्मेट क्रिएट कर देते हैं, इसके अंदर फील्ड को इंसर्ट करते हैं। करेंगे, देखिए पेज सेटिंग्स पर अभी मैं फिलहाल सिर्फ हेडर को 1 रखूंगा, बाकी दोनों को 0 0 रखूंगा। हेडर पर जाके ने जो QR कोड, पहले जो ये मेथड यूज होता था, अभी जो डायरेक्ट मेथड आ चुके हैं, लेकिन ये पहले भी आता था, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो अमाउंट होता है ना, स्कैन्ड अमाउंट, उसको फ्रीज कर सकता है। देखिए यहाँ पर ऑल्ट F4 करूँगा, ऑल्ट F4 करके सॉरी कोड को इंसर्ट करूँगा प्रिंट स्टाइल में जाके, मतलब डायनामिक QR कोड है, यहाँ पर UPI करके नाम दे देता हूँ, क्योंकि UPI का फॉर्मेट मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था, उसका नाम होता है। ये बारकोड जैसे QR कोड का साइज होता है, 1 मतलब साइज होता है, तो ये हमने बना दिया। अब हमने जो ट्रांजैक्शन के बाद जो वो प्रिंट करते हैं उसके अंदर UPI QR कोड आ जाएगा, QR कोड आ जाएगा। उसके अंदर जो अमाउंट होता है वो भी फ्रीज होके आता है। यहाँ पर हमने टेस्ट करके एक फॉर्मेट बनाया था, इसको अगर प्रीव्यू करते हो के अंदर QR कोड आपको आ जाता है। ये QR कोड को अगर स्कैन करते हो तो आपका जो अमाउंट है, बिल अमाउंट है, वो अपने आप आपको फ्रीज होके आता है। ये फ्रीज होके आने से क्या फ़ायदा है, फ्रीज होके आने से कस्टमर लोग आपको जो पेमेंट करता है वो एक्यूरेट अमाउंट पे करेगा। 1 रुपया ज़्यादा 1 रुपया कम आपको पेमेंट नहीं करेगा, एक्यूरेट अमाउंट को पे करेगा। अगर ये बात ध्यान में रखिए, अगर आप ये वाली मेथड फॉलो करना है कर सकते हो, नहीं तो पुराना जो मैंने पहले स्टेप में बताया था डायरेक्ट मेथड, वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर कभी कभी आपको जो अमाउंट फ्रीज नहीं होता है तो आप इस वाली डोमेन को क्रिएट करके आप बिजी के अंदर QR कोड प्रिंट करा दीजिए, फिर आपको फ्रीज होके आता है। अगर कभी कभी फ्रीज नहीं होता है तब क्या करें, इस मेथड में फ्रीज नहीं होता है तो एक उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जो UPI का डोमेन का नाम आपने क्रिएट किया था बिजी के अंदर UPI के नाम से, में जो अमाउंट करके एक फील्ड होता है, AM करके होता है, राइट, यहाँ पर जो AM करके एक फील्ड होता है, ये वाली, ये आप है ना कैपिटल में नहीं लिखना है, इसको स्मॉल में लिखना है।
लोअर केस में लिखने से ये अमाउंट फ्रीज होके आता है। अगर आप अपर केस में लिखते हो तो वहाँ पर अमाउंट आपको ओपन मोड में होता है, अमाउंट मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। यू हैव टू फिल द अमाउंट मैन्युअली if it is in upper case, but if it is in lower case, then automatically the invoice value will be comes after you scan the QR code। क्या आपका इनवॉइस का वैल्यू है, वही इनवॉइस का वैल्यू आपका क्यूआर कोड स्कैन करने से आपका मोबाइल पर, फोन पे पर, गूगल पे पर आपको दिखेगा। आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट लेट अस सी सम अदर सॉल्यूशन challenges। कैन आई शो माई कंपनी नेम टू कस्टमर्स व्हेन दे स्कैन द क्यूआर कोड? यस, आपको आ जाता है। ये आपको देखिए ट्रेडिशनल जो हमने पहले स्टेप्स में देखा था, जो जनरल सेटिंग्स में जाके वो पेमेंट क्यूआर कोड को ऑन करके किया था, उस मेथड पे भी आपको पार्टी का जो आपका कंपनी का नाम स्कैन करने से आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया गया है। आपने जो कंपनी का नाम यहाँ पर क्या लिखी हो, वही नाम आपको स्कैन करने के बाद भी, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद भी आपको मोबाइल पे दिखेगा। इन केस आपको जो अभी एक मेथड आपने शो किया था, तो यूपीआई करके एक फॉर्मेट बना के उसके अंदर मैंने कुछ डोमेन का नाम सेट करके, वैल्यू सेट करके दिखाया। इस मेथड से अगर करते हो, यहाँ पर पी एन करके एक फील्ड मैंने लगाया था, पी एन करके लगाया था, इज इक्वल टू के बाद जो मेरा कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है, कंपनी का नाम आपको वहाँ पर स्कैन करने से दिखेगा। ये दोनों मेथड के अंदर कुछ कस्टमर्स ऐसा होता है, पुराना जो क्यूआर कोड ऑलरेडी सेट करके रखा है लेकिन उसमें कंपनी का नाम आपको नहीं आ रहा है, तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। वहाँ पे पी एन करके होता है, उसके बाद में इज इक्वल टू के बाद आपका कंपनी नाम डाल दीजिए, तो क्यूआर कोड में कंपनी का नाम दिखेगा। अगर आप नए मेथड से क्यूआर कोड बनाते हो तो कुछ नहीं करना है, जनरल सेटिंग्स में जाके आपका कंपनी का नाम सेव कीजिए, जो क्यूआर कोड के स्कैन करने से आपका स्कैनर के अंदर, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे के अंदर जो कंपनी का नाम, सेंडर का नाम दिखेगा। बेसिकली ये था आज का वेबिनार का टॉपिक। सो बेसिक एजेंडा ऑफ द टुडेस वेबिनार सेशन इज क्यूआर कोड। So seamlessly integrate the QR code with busy software that is in your invoice format, and how we can do the better follow up to the with customers, how we can share these invoices to the customers. And this is the basic agenda of this today's webinar. So this feature is very uh, specific feature, but this feature will help us lots, because all type of businesses, they have a pain point of these payment follow-ups, they have a pain point of these payment collections and everything. So but if you are using busy software, definitely you try with this feature, QR code feature, payment QR code features. Definitely it will give you more better results in terms of payment collections. Okay, for further any assistance related to any busy related questions, or this QR code related, you can feel free to reach with us. You have a contact number over here, 8282828282. This is our 24/7 help desk number. And if you have any questions or any feedbacks, so please kindly write to us. So support@busy.in, or else feedback@busy.in for any kind of feedbacks. So thank you so much for everyone to joining this webinar session. Thank you for your valuable time. If you had any queries or questions, please ask the questions in the chat box. I'll there to help you. Thank you.